same thing. The fact that you can sit for 2.5 hours and not get bored at all, and it's a very commercial film which entertains you from the beginning to the end. And हॉरर फिल्म्स का बहुत शौक है मुझे हमेशा, और कॉमेडी फिल्म से तो एसोसिएट हुई हूँ, तो हुआ ही रहा हूँ. So it was like a double whammy. You horror, you have comedy, then you have so much for the actor to do, and it comes under the bracket of the quintessential old school Bollywood commercial pot boiler with a difference. So I felt that there's a great scope in presenting the old wine in a new bottle, and if some big actor agrees to do the film, फिर तो मतलब वो उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं to showcase his versatility, and we were very lucky to get Akshay sir in the movie. So I just had all these things in mind very, very subconsciously. By and large, I just loved Kanchana, and I said I want to be part of it in some way. And when we got the rights, I just chanced upon the idea of making it as a producer as my first film. So it was God sent, I would say. He comes on time. He's always like, even just now we were at the premiere in Delhi. तो मुझे कहा गया था 6:30 बजे रेडी हो जाओ. तो 6:26 को मैं शावर से निकला तो मुझे फोन आया कि सर रेडी है, आप आ जाओ नीचे. सर यू टोल्ड मी 6:30, सो मुझे 4 मिनट और तो दे दो. एंड यूजुअली 6:30 मीन 6:45, 15-20 मिनट्स तो होता ही आगे पीछे फिल्म इंडस्ट्री में. इवन इफ यू आर पंक्चुअल, 15-20 मिनट्स तो लगता ही है. But she kept calling, and then I had to just get ready, like change my clothes and dry my hair and everything in 10 minutes. It was crazy, and he's like that. But ऐसा नहीं कि वो 6 बजे निकल जाते हैं. अगर आप रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा और रुक जाए तो वो रुक जाते हैं. He doesn't. But yeah, he won't waste your time, and he won't waste his own time also. The film required a very, very big budget, very, very big mounting. So we needed somebody who is an established superstar today to back this project, so that it can be made on that level. Otherwise, it will become probably a film that probably won't have that much grandeur or won't have that much appeal for a pan-Indian audience. Then एक अलग टाइप की फिल्म बनती. लेकिन हम चाहते थे कि हम इस फिल्म को लॉरेंस सर की पहली फिल्म को और कंचना के रीमेक को एक बड़े पैमाने पर बनाए. So obviously then the actor has to be appropriate towards the mounting of the film and the scale of the film. Also the other thing is that अच्छे roles, शायद मतलब ये बहुत अच्छा रोल तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे रोल आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेरी अगली फिल्म जो मैं खुद एक्ट कर रहा हूँ जिसमें एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, वो भी बहुत अच्छा रोल है. So it's not that you need to hold on to everything. Sometimes you have to think about the movie also. You can't just think about yourself. So I looked at it as a producer, not as an actor. कुछ चीजें जो इंडस्ट्री की है वो हाईलाइटेड हो गई, जो होनी भी चाहिए थी वो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें बहुत एग्जैजरेट हो गई, बहुत मतलब कि इंडस्ट्री के बारे में ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से बात की गई. और ऑब्वियसली नेगेटिविटी के बारे में मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि the more you ignore it, the faster it dies out. So I believe कि हमारी इंडस्ट्री बहुत सालों से मतलब बहुत कुछ देखती आई है. It's not that we have not gone through ups and downs and criticisms and all that. लेकिन इंडस्ट्री हमेशा और भी उजागर होकर आई है और भी स्ट्रॉन्ग होकर आई है. और इंडस्ट्री ने हमेशा ही मतलब जब जरूरत पड़ी है तो एक दूसरे के लिए खड़े होकर उन्होंने जवाब भी दिया है, जो इस बार भी इंडस्ट्री ने एक पॉइंट पर आकर एक जवाब भी दे दिया. तो मैं नहीं मानूंगा कि हर चीज को रिएक्ट करना जरूरी है, हर चीज पर मतलब बुरा मानना जरूरी है, और हर चीज पर मतलब सफाई देनी जरूरी है. जब देनी होती है तो इंडस्ट्री हमेशा साथ आ ही जाती है. इंडस्ट्री ने मतलब बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ध्यान दिया, जैसे कि वर्कर्स का जो प्लाइट रही है बिकॉज ऑफ कोविड. दोज वर द इश्यूज दैट द इंडस्ट्री वाज फोकसिंग ऑन. इतने वीडियोस बनाए एक्टरों ने, सारी इंडस्ट्री के एसोसिएशंस ने, टू प्रमोट स्टेइंग एट होम, टू प्रमोट raising funds for a lot of causes.
एंड वी फोकस्ड ऑन स्टार्टिंग द स्टूडियो, स्टार्टिंग बिजनेस अगेन, लोगों को अपनी आमदनी वापस मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो ये चीजें पर जी, इन चीजों पर फोकस करेगी इंडस्ट्री की, जो चीजें मतलब अनइम्पॉर्टेंट है या फिर मतलब जो आएंगी जाएंगी, उन चीजों पर फोकस करेगी इंडस्ट्री। आई बिलीव समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लेट इट गो।